it has become clear that the Modi government, having failed at every single aspect of governance, is now desperate to divert attention from its half-baked attempts at policy making. The latest, of course, as we know, is the Agnipath scheme, at the minimum launched without consultation or application of mind, and is yet another link in the chain of poorly thought out announcements which have led to these huge protests and disputes across the country. And if I may say in a lighter vein, it's a compliment to all of us that the standard answer is that they are conspiracies created by the opposition and not spontaneous protests. That's a huge compliment, I think. But now, how does the government, Modi government, deal with these issues? One of them is through its time-tested technique: distraction, digression and deceit. Distraction, digression and deceit. One of those distraction, digression and deceit is keep hounding Rahul Gandhi. 4 days, 40 hours. 5th day, 55 hours. Today I am sure he will cross the half-century mark. If at all, there is no 6th day. He has been called after 7 years minimum. I submit to the nation through you that he has been called again and again to distract the nation's attention, to keep all cameras focused on the charade at the ED office, and to make sure that the issues which deserve attention, be it Agnipath, be it price rise, be it unemployment, remains camouflaged and hidden. Friends, Rahul Gandhi has been a consistent, unvarying voice against the BJP and Modi Sarkar. And therefore, the harassment of Rahul Gandhi is an act of utter revenge, retribution, retaliation, reprisal and recrimination. There is nothing constitutional or legal about this process. Everything is personal, not constitutional. Personal grudge, personal grievance, personal vendetta. Friends, I have some limited experience of the law, only 40 years plus. I have, in my entire experience of diverse areas of law, never seen investigative agencies in a case like this, of this nature or degree, never ever seen calling someone for 5 days for roughly 10 to 12 hours of questioning each day. You may have ED cases, CBI cases, IT cases, blah, blah, blah. I can assure you, with my limited experience, that they have never seen this kind of hounding. And let us go a little deeper. You apply your common sense. You are the ED. How many questions can you ask me? How many times can you repeat that question? And how long can you ask that question? I am not grudging them their right to question. But what is this Himalayan bundle of questions which never ends, 29,000 plus feet high? Question number 1, are you shareholders and are you Mr. Rahul Gandhi, Director of Young India? Answer is yes. Open, official, signed. What is there to question about? Question number 2, does Young India own a majority of the shares of AJL? Answer yes. For last 15-20 years, shareholding record, everything is open. Question number 3,
If you, Mr. Rahul Gandhi, are a shareholder of Young India and Young India is a shareholder of AJL, do you not own the assets of AJL? Now the answer to this can't be asked in a question because the law says, a law which the Supreme Court established in 1955, that a shareholder of a company does not own the assets of that company. If I am a shareholder in your company, I don't own the assets which that company owns. So Young India does not own the assets of AJL. It may be a shareholder, a majority shareholder. How many times will you ask this question? Over 55 hours, 5 days. And these are legal answers. They are not factual answers subject to questioning. Did you get any benefits from Young India is my fifth question to Mr. Rahul Gandhi. Sorry sir, even if I wanted I could not get. Because this is a section 25 company, no dividend, no perks, no salary, nothing can be given even if you want to give. Where is the question of getting? So the point I am saying, sir, the question I am asking you is about the degree, nature and quantity of questions. That is why it is malafide, it is harassment, it is retribution, reprisal, recrimination and revenge. Friends, with every passing day, this reveals a desperation of the BJP. It reveals the absence of rudimentary evidence. Remember those 3 points I made in my original first day briefing when the summons came. I took that briefing, if you remember. Point 1, there is of course no official FIR after 7 years. The answer is, there is a court summons. Chaliye usko chhod dete hain. But I made out the point that this is a conversion of debt into equity. Where is the transfer of money, transfer of property? AJL owns 1, 2, 3 properties. Shareholder of AJL is Young India. Shareholder of Young India are 7 people. Mr. Dubey, Ms. Gandhi, Mr. Gandhi, etc. By being shareholders, where is the transfer of money? Where is the transfer of immovable property? So I had raised the question from day one, this is money laundering alleged without money. This is money laundering alleged without transfer of property. And the third question they never answer is, the beneficiary of all this money laundering is Young India or its shareholders. When Young India is a Section 25 or a Section 8 company of the New Companies Act, which even if anybody wants cannot give salary, perks, dividends, anything by any name, whatever called. So friends, in the light of all this, clearly the troubling and the harassment of Rahul Gandhi is an outcome of BJP's fight, fray and fuss with him personally. It is an outcome of the vendetta personally. And we have asked these questions earlier. Why all this after 7 years? Why all this for 5 days, 55 hours after 7 years? And we are asking this question of the ED also. Has the ED lost all perspective? Is it before the full gaze of the nation utilizing public money and resources on pursuing a case which stretches the credulity of even a Andha Bhakt? Even a Andha Bhakt's credulity is stretched. Why is all time and attention, all priority been given to this case when ED cases are languishing, many of them? Why has this government not been able to make out any credible case after 7 years? I would request the ED to remember that they are officers of the Constitution, of the statute, not subordinate. Unfortunately, the BJP is high on its rage, which is why it has made ED under its cage. The BJP and the government is high on its rage and has tried to make the BJP ED its cage.
And that is the real tragedy of this entire episode. दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में हिंदी में भी संबोधित करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है राहुल गांधी जी के विषय में। 7 साल बाद 5वें दिन 50 से 55 घंटे सेंचुरी मारने का इरादा है कि नहीं ईडी का हम नहीं जानते, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व से भाजपा की हालत हो गई है पतली। भाजपा की हालत हो गई है पतली। इसीलिए भाजपा ने बनाया है ईडी को अपनी कठपुतली। ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको और सरकार और बीजेपी को, सत्तारूढ़ पार्टी को ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच छिपाए नहीं छिपता। झूठ के पांव नहीं होते और सच छिपाए नहीं छिपता। संस्थानों को बरगलाने से राहुल गांधी नहीं निपटता। दोस्तों, ये बड़ा स्पष्ट है कि द्वेष की भावना से, गुस्से, प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इस प्रकार की मजाकिया 7 वर्षीय केस के विषय में 50 घंटे 5 दिन किसी को बार बार बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी जानती है कि देश के सभी अहम मुद्दों पे जो आज देश को पीड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो कीमतों की मार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उसमें मन को, मस्तिष्क को बरगलाने की, बहकाने की, डाइवर्ट करने की, डाइग्रेस करने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के कारण ही किस प्रकार से लोगों का मस्तिष्क घुमाया जाए, ध्यान आकर्षित ऐसी चीज़ों पे किया जाए, सुर्खियों पे, कैमरास पे जो ईडी के ऑफिस के सामने हैं, और बेरोजगारी और अग्निपथ और कीमतों से हटाया जाए, ये सब कारनामे और हथकंडे आप देख रहे हैं। आपको मैंने ही पहली बार संबोधित किया था जिस तारीख को ये समन्स आए थे, और मैंने कुछ बड़े सरल मुद्दे आपके समक्ष रखे थे जिनका कभी भी ईडी जवाब नहीं देती है, सरकार जवाब नहीं देती है। आज 7 वर्ष में कहीं से जवाब नहीं आता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न क्या हैं। ये ऐसे प्रश्नों का पहाड़ कैसा है जो 5 दिन 50-55 घंटों में खत्म नहीं होता। ये कौन सा हिमालय है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि मेरे को भी कुछ अनुभव है कानून का। सिर्फ दोहरा रहा हूं, सिर्फ 40-45 साल इस पे बिताए हैं मैंने अपने इस सीमित अनुभव में कभी नहीं देखा कि कोई एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोई भी हो, 50-55 घंटे कितने प्रश्न पूछ सकती है, कितने प्रश्नों को दोहरा सकती है, कितने प्रश्न उठ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अगर मैं ईडी हूं और आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो प्रश्न नंबर 1 क्या होगा कि मान्यवर, आप क्या यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं? उत्तर हाँ, 10 साल से हैं, ऑफिशियल है, कागजी है। दूसरा प्रश्न, क्या यंग इंडिया शेयर होल्डर है एजेएल का? उत्तर हाँ, दशकों से रहा है, हमेशा से है, कागजों में है, आरओसी के पास है। तीसरा प्रश्न, आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के हैसियत से क्या एजेएल के एसेट्स को मालकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं? अब ये बड़ा रोचक प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर तो कानून में 1955 में लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 1955 से और वोडाफोन के निर्णय ने 2012 में वापस दोहराया उसको कि अगर मैं
उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर उस कंपनी का 100% शेयर होल्डर भी हूं, तब भी उस कंपनी के बैंक अकाउंट या एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं। शेयर होल्डर का उस पर मालिकाना हक और नियंत्रण नहीं होता है। तो न यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड के एसेट्स की ओनर है, न राहुल गांधी, सुमन दुबे, मिसेस सोनिया गांधी उसकी मालिकाना हक या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति हैं। ये कानून में लिखा है, 1955 से लेके 2012 में दोहराया उच्चतम न्यायालय ने। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे और कितनी बार ये प्रश्न पूछेंगे, और 55 घंटे में आपको ये समझ नहीं आएगा। चौथा प्रश्न कि आपको मान्यवर कोई फायदा हुआ इस डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग से, तो राहुल गांधी जी का जवाब तो वही रहेगा, अरे भाई अगर फायदा मैं करवाना भी चाहता और कोई फायदा देना भी चाहता तो कानून के अंतर्गत सेक्शन अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 25 वाली कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता। ना आप सैलरी दे सकते हो, न पर्क्स दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फायदा का कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप बार बार? ये कानून में लिखा है, वो कंपनी जिस प्रावधान में बनी उसमें लिखा है। कितनी बार आप, इसका मतलब अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि ये 55 घंटे और 5 दिन सिर्फ हैरेसमेंट है, प्रतिशोध है। ये संवैधानिक या कानूनी नहीं है, ये निजी है, ये निजी प्रतिशोध है, भय है। क्योंकि राहुल गांधी सबसे लंबे समय से अनिवार्य रूप से हर मुद्दे पे आपका सामना करते हैं, आपको सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, और आपको वो पसंद नहीं है। मैंने आपको उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कहा था, जो याद दिलाना चाहता हूं, कि ये एक बड़ा विचित्र मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो मैंने पहली बार सुना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जबकि कोई रुपया, मनी या प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति स्थानांतरण ही नहीं हुई। एक पैसा स्थानांतरण नहीं हुआ यहां से यहां, और एक प्रॉपर्टी स्थानांतरण नहीं हुई यहां से यहां। एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं, एजेएल का शेयर होल्डर यंग इंडिया, जो उसका मालिकाना हक नहीं है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं ये लोग सब, उनका कोई इसमें स्थानांतरण कहां हुआ? वेयर इज मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग? सो दिस इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग और विदाउट प्रॉपर्टी मूविंग। इस सबसे सीधा सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि ये द्वेष की भावना से मन घड़ंत बना बनाया केस है। और जैसा मैंने कहा आपको कि ईडी को अपनी कठपुतली बनाया है आपने, जैसा कि मैंने आपको कहा, बीजेपी इज हाई ऑन इट्स रेज, सो इट हैज कन्वर्टेड ईडी इनटू इट्स केज। और इसलिए ये आवश्यक है कि इस नीचे दिखाने के सिलसिले में, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, ये बार बार बुलाना, अपमानित करना और नीचे दिखाने की प्रक्रिया है। इस नीचे दिखाने की सिलसिले में खुद अपने ज़मीर को इतना छोटा बना दिया कि समर्थक भी शर्मिंदा हो गए। आपके समर्थक भी शर्मिंदा हैं इस बात से। और हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से कांग्रेस या राहुल गांधी अगर भयभीत होंगे या दबेंगे तो आप किसी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट ये खत्म कर लें, पहले इस पे खत्म कर लेना, बाद में आते हैं। आपके प्रश्न में उत्तर खुद ही निहित है। आप लोग तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, कभी आपने देखा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये सूत्रों द्वारा नल की तरह लीकेज करती है? ये कैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? कौन सी कठपुतली है? ये क्या अनुमति है ऐसी चीज की? नंबर 2, हमने इन्हीं बालों में चुने हुए सिलेक्टिव लीकेज के विषय में कंप्लेंट 2 हफ्ते पहले दायर कर दी थी। और मैं तो कहता हूं कि सबको बताएं देश को कि वो लिखना नहीं जानते। बहुत बड़ा एक क्लेम है ईडी का। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ईडी का ये विश्वास है कि जब तक मैं वो न लिखूं जो वो चाहें तब तक ये इंक्वायरी चलेगी,
तो मैं समझता हूँ कि वो न कानून जानते हैं न सिद्धांत जानते हैं। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है आपके प्रश्न से कि ये जानबूझकर सिलेक्टिव लीक्स किए जा रहे हैं और कोई एजेंसी को शोभा नहीं देता। वो संविधान के नौकर हैं, बीजेपी के और सरकार के नौकर नहीं हैं। सर, आपने जो सवालों की एक लिस्ट, जो 4 सवाल आपने बताए, क्या जो और चीज़ें आ रही है कि जो यंग इंडियन कंपनी में 1 करोड़ रुपए आए, इसमें आरोप है कि कोलकाता की एक शेल कंपनी का नाम लिया जाता है, क्या उसको लेकर के भी? मैं जानता हूँ पूछताछ तो आप पूरे, अब देखिए 55 घंटे अगर आप 5 दिन लगाएंगे तो आप पूछताछ तो कर सकते हैं सितारों के बारे में भी, चंद्रमा के बारे में भी और अंतरिक्ष के बारे में भी, ठीक है ना। कोई अंत नहीं है, जब तक आप ऐसी पूछताछ नहीं किए तब तक आप 55 घंटे खा भी नहीं सकते। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया, ये 10-12 साल पुराना लोन है, चेक से दिया गया है, सब अकाउंट्स में डिस्क्लोज्ड है। मैं अगर आज आरोप लगा दूं कि ये लोन सब दिया गया है औपचारिक रूप से, वो ये है वो है, तो उसका क्या मतलब? तो एक विछंट है ना, इसमें कोई गुप्त तो नहीं है कुछ भी, सब कागजी है, चेक्स है, पुराना है, रिटर्न्स में है। ये भी एक कानून के बारे में थोड़ी कम समझ दर्शाता है। ये भी कह रही है ईडी, जो आप कह रहे हैं, जो आप ईडी की तरफ से कह रहे हैं, एक तरह से मतलब प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, प्रश्न उठा रही है ईडी। इसका कानून का एक इग्नोरेंस झलकती है। जब आप मुझे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो कोर्ट पे किस चीज़ के लिए कोर्ट पे जाऊँ मैं? कोर्ट किस चीज़ में जाना है? ये तो बड़ा आसान है कि मैं आपको बुलाता रहूँगा, आप कोर्ट जाइए। पहली बात तो ऐसे प्रश्नों से जाहिर है कि मैं अपनी गलत काम करता रहूँगा, आपके पास तो विकल्प है, कोर्ट में जाइए। ये क्या उत्तर हुआ? दूसरा, इस स्टेज पे क्या विकल्प है कोर्ट के पास? वो तो आपको प्रश्नोत्तर के लिए बुला रहे हैं। इसलिए ये भी एक बरगलाने की टेक्निक है, ये भी एक आपको बहकाने की टेक्निक है। खत्म? हाँ, नहीं, इस पे खत्म। हाँ, अच्छा बताइए, ये इनको पहले थे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, देखिए, मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, मैं किसी प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं देता जब तक कि मेरे पास तथ्य न हो। तो पहली बात तो आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात करनी होगी। दूसरा, ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बड़ा जाहिर है कि जो चीज़ों में बीजेपी माहिर है, खरीद फरोख्त में, उसमें कुछ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इसका पूरा ब्यौरा तब देंगे जब हमारे पास तथ्य हों। मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, इसलिए मैं कोई गैर जिम्मेवारी से आपको कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं उनके इस दुष्टता और उनके इस भर्त्सना योग्य कारनामों का ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सफल होते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न आपकी फहरिस्त नहीं, उस फहरिस्त पे 10 और नाम जोड़ सकते हैं आप। उसमें से 5-7 में तो मैं खुद पेश हुआ हूँ उच्चतम न्यायालय तक। तो उनका बहुत बड़ा एक इलस्ट्रियस सूची है इसके विषय में, और इसमें वो PhD बल्कि पोस्ट डॉक्टरल भी कर सकती है बीजेपी। मैं समझता हूँ उनको एक विश्वविद्यालय और पाठशाला खोल देनी चाहिए इस बारे में कि खरीद फरोख्त का कैसे प्रयत्न किया जाए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ समझदार लोग हैं, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। बीजेपी हमेशा सफल नहीं होती और मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि सफल नहीं होगी, लेकिन उनके प्रयत्न, उनकी मंशा, उनके उद्देश्य से वो पूरे देश को वाकिफ करवा रहे हैं। सस्ती राजनीति, भ्रष्टाचारी राजनीति, डर, भय और दुष्प्रभाव की राजनीति। भारतीय जिद पार्टी हमने कहा था एक बार, बीजेपी, ये भारतीय जिद पार्टी का एक और उदाहरण है। ये जिद, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है
दो चीज़ों से, अहंकार से और ये मान्यता से कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई मी माई सेल्फ, मैं सदैव सही होता हूँ। इसके आपने दुष्प्रभाव कई बार देखे हैं पहले, बल्कि उन दुष्प्रभावों, उन गलत निर्णयों का दुष्परिणाम खुद स्वीकार करती है बीजेपी आज, लेकिन उनके अंदर उतना बड़प्पन नहीं है कि उसको मान लें औपचारिक रूप से। ये आपने देखा है डिमोनेटाइजेशन के वक्त, ये आपने देखा है कृषकों के मुद्दे के वक्त, ये आप अब देख रहे हैं, ऐसे कई सैकड़ों और उदाहरण हैं। लेकिन जहाँ जिद पार्टी हो, जहाँ अहंकार हो, और दूसरा जहाँ इनफैलिबिलिटी, अहंकार और इनफैलिबिलिटी में गलती कर ही नहीं सकता, और तीसरा इसका बिंदु होता है कि जो सब कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हो, गलत तो आप हो, निर्णय तो मैंने लिया लेकिन गलत तो आप हो। तो ये सब चीजें मिश्रण होता है तो आपको यही मिलता है परिणाम। ये दो चीजें मैं इंग्लिश में भी बोल दूं, सेम थिंग। यू सी, वी हैड सेड मेनी times earlier that the correct name of the BJP is Bharatiya Zid Party. Bharatiya Zid Party is a reflection of sheer mulish obstinacy, and that obstinacy is made up of several basic components. First, absolute mind-boggling ego, ahankar, arrogance. Second, illusions and notions of infallibility. Third, blame the person in front, blame the opposition. I take the decision, but you are to blame. This combination has cost this nation dear. The sufferer has been this nation. There are many examples in your list, from demonetization to the farmers' agitation, to Agnipath, and many more. But this government never learns. It learns only to reinforce its zid. देखिए, ये आज और कल में ही निर्णय हो रहा है, बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, वरिष्ठ लोगों की नीति समिति बैठ रही है। बल्कि जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी मुझे पता है कि कई मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए मेरा इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से इस सब का एक ही उद्देश्य है कि जिस नाम पे सहमति हो, जिस नाम पे पूर्ण रूप से एक समन्वय हो, और जो नाम पूरे विपक्ष को साथ लेके चलेगा, वो निश्चित रूप से हम आपके सामने आज कल परसों में रख देंगे। नहीं, हम इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये समिति निर्णय करेगी। उस समिति का हिस्सा कांग्रेस भी है। नहीं, आप एक ही प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछेंगे तो मैं भी इतना तो मजा हुआ खिलाड़ी हूँ अभी। ओके, थैंक यू।